डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी में जिस क्लॉज में ऐसा लिखा होता है कि हम आर्बिट्रेशन welcome to another lecture, and today in this lecture our topic is beyond litigation. Beyond litigation का क्या मतलब है? लिटिगेशन का क्या मतलब है? क्या सिंपल है कि अगर दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं तो इनमें से एक पार्टी कोर्ट जाएगी, दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, दोनों का डिस्प्यूट सुना जाएगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। दिस इज लिटिगेशन। ठीक है। अब ये चाहे आपका सिविल मैटर हो या आपका क्रिमिनल मैटर हो, किसी भी टाइप का मैटर हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, सिविल डिस्प्यूट्स हैं, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, और अब तो क्योंकि बिजनेस लॉ इतना बढ़ गया है तो कॉम्पिटिशन लॉ, सर्फिसाई, बहुत सारे इश्यूज आ गए। क्वेश्चन इज सिंपल कि जब इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं तो पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है। द क्वेश्चन इज कि प्रॉब्लम्स खाली पेंडेंसी की नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे की। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एट द सेम टाइम इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कोर्ट जाना मतलब अपनी पूरी जिंदगी डिस्प्यूट के अंदर लगा देना। अगर आपका प्रॉपर्टी मैटर है और आप कोर्ट चले गए या कोई दूसरी पार्टी आपकी अपोजिट पार्टी कोर्ट चली गई तो सारी जिंदगी को फुर्सत हो जाती है। बियॉन्ड लिटिगेशन, इसीलिए एक बियॉन्ड लिटिगेशन तरीका निकाला गया है। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है। बियॉन्ड लिटिगेशन का मतलब यह है कि इन लिटिगेशन से हटके, कन्वेंशनल कोर्ट से हटके कोई ऐसा तरीका जिससे हमारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएं, चीप एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, जल्दी से जल्दी हम फारिग हो जाएं। इसको कहते हैं बियॉन्ड लिटिगेशन। और इस बियॉन्ड लिटिगेशन के लिए क्या तरीका निकाला गया है? निकाला गया है Alternative Dispute Resolution System, ADR, Beyond Litigation, understanding the concept of alternative dispute resolution. Alternative, the term alternative itself says कि something which is replacing the conventional litigation and something which is in place of litigation and which is offering some better facilities. Okay. Introduction. When it comes to legal conflicts, the traditional litigation route frequently evokes visions of drawn out legal fights, strained relationships, and astronomical expenditures. But there is a world outside of the courts where disputes can be settled more effectively and amicably, known as ADR, or Alternative Dispute Resolution. In this article, we will explore the concept of resolving disputes using ADR. What is ADR? In layman's language, ADR is a mechanism to resolve issues outside the conventional courtroom setting or without trial. Okay, where disputes are settled outside the court amicably. Okay, this is ADR. It is a non-adversarial mechanism, which means parties cooperatively work together to reach a mutually beneficial resolution. According to Webster Dictionary, ADR is a forum or means for resolving disputes as arbitration or private judging that exists outside the state or federal judicial system. It is capable of providing a substitute for the traditional methods of resolving disputes such as trial, jury, or lawsuit. It means with the help of ADR, one can resolve conflicts without litigating the matter and seek timely justice. ADR uses a third party who helps in settling disputes, either civil, industrial, commercial, or family. Okay. See, in today's world, nobody wants to go to the court because nobody wants to spend money or incur astronomical expenses. Nobody wants to go to the court. Nobody wants to put his or her entire life in one single dispute to settle one single dispute of his life. Okay, if I have a dispute, one single dispute in my life, why would I put my whole entire life into it? Why would I spoil it? Okay, if something is going, let it go. That is better. Live a happy life, I would think. That is how I can think as a human being. The question is that where is justice? Are the courts or the judicial system
have failed to ensure justice to the people only because there is a lot of disputes and pendency of cases is rising day by day. What is the solution to this problem? The solution to this problem is, and one more thing before I talk about solution, one more thing is that the process involved in the conventional litigation in the courts, it's too complicated. Like the whole evidence procedure, the filing of the case, then hearing of the case, then listing of the case, then calling the other party, then डेट्स, हर तारीख पे तारीख आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और वो एक ही स्टेप बहुत मुश्किल से, इट मूव्स एट अ स्नेल स्पेस, क्योंकि जो प्रोसीजर है लॉ का वो बहुत ज्यादा लेंदी है, रेड टेपिज्म इन्वॉल्व है उसके अंदर, इट्स वेरी कंबरसम, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट्स वेरी स्लो. दैट इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए तो बहुत जल्दी केसेस निपटाए जा सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन इज कि लॉ को पूरा चेंज करना, सिविल प्रोसीजर कोड 1906 इतना बड़ा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है. When you get into it, you are deeply lost because it has its own universe, it has its own world. So that is very complicated. अब क्वेश्चन इज कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कोई एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो लॉ रिकॉग्नाइज करे, और उस फोरम में जाके दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात कहें, और एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल हो, वो उसके ऊपर अपना फैसला सुना दे, और फैसला सुनाने के बाद वो फैसला भी वैसे ही एप्लीकेबल हो, उसकी भी वही एनफोर्समेंट हो जैसा कि एक कोर्ट के डिक्री का होता है, और वो मामला वहीं का वहीं निपट जाए. और ऐसा फोरम इन सारे प्रोसीजर से, सिविल प्रोसीजर से अबव हो. यहां पर कोई सिविल प्रोसीजर, एविडेंस प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा. आप अपनी बात रखो, ये अपनी बात रखेंगे, और दोनों मिलकर फैसला कर लेंगे. दिस इज नोन एज एडीआर. इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन. And there is a very thin line of difference between arbitration, mediation and conciliation. और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? ADR, Alternative Dispute Resolution System. Okay, what are the types of ADR? ADR is categorized into 5 types of arbitration, mediation, conciliation, negotiation, and lok adalat, which are discussed as follows. Arbitration. It is a strategy that involves the submission of a dispute to one or more impartial arbitrators. यहां पर जो बंदा बैठता है वो जज नहीं होता, वो आर्बिट्रेटर कहलाता है. ओके, आर्बिट्रेटर. दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं. हु देन रेंडर अ डिसीजन नोन एज एन अवार्ड. यहां के डिसीजन को डेक्री या जजमेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं अवार्ड. इसको कहते हैं अवार्ड. ओके, अवार्ड कहलाता है. Arbitration is a process for resolving disputes where a neutral third party reviews the relevant facts and makes a ruling that both parties can legally execute. It can be binding, meaning that the parties agree to abide by the arbitrator's decision, or non-binding, where the award serves as a recommendation that the parties can choose to accept or reject. See, arbitration is a process for resolving disputes where a neutral third party reviews the relevant facts and makes a ruling that both parties can legally execute. आप दोनों पार्टीज बैठो, एक ऐसे अवार्ड सुनाते हैं जो दोनों पार्टीज के हित में होगा. ठीक है, एक मामले को सेटल करना है, कोई ये नहीं हार जीत का मामला नहीं है, हर जगह मामले को सेटल करना है, डिस्प्यूट को खत्म करना है. डिस्प्यूट हारना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी बाइंडिंग, मीनिंग दैट द पार्टीज अग्री टू अबाइड बाय द आर्बिट्रेटर्स डिसीजन. और नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टीज उसको माने ही माने अगर वो satisfied नहीं है. Where the award serves as a recommendation that the parties can choose to accept or reject. Award is in some cases it is like a recommendation. Okay. In India, the provision of the Arbitration and Conciliation Act of 1996 will apply if the matter is referred to arbitration. Okay. If the matter is referred to arbitration, तो यहां पर कौन सा एक्ट चलेगा? ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996. देखिए, सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन का मसला आया था वो इंटरनेशनल लॉ में आया था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले कंट्रीज ये चाहते थे
कि उनका मैटर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। जिसका मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं वो इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी of 1960. This was a treaty between India and Pakistan, and in the treaty itself, India and Pakistan, both the countries, both the parties, they agreed कि अगर हमारे बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, हम आईसीजे नहीं जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वहां पे टाइम लग जाएगा, हम आर्बिट्रेशन से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी में जिस क्लॉज में ऐसा लिखा होता है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। उसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन क्लॉज। और इसी क्लॉज की वजह से इस एग्रीमेंट को कहा जाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ओके, अब ये देखिए, दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, दो कंपनीज के बीच में भी हो सकता है। मेरी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, मैं आपसे डील कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख जाए, एक क्लॉज आ जाए, आर्बिट्रेशन क्लॉज आ जाए कि अगर हमारे आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कर लेंगे, इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। ओके, आर्बिट्रेशन क्लॉज वेग नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सबसे पहले ये इंटरनेशनल लॉ में स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल लॉ के बाद अब ये नेशनल लॉ में भी आने लगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसको बहुत प्रमोट किया और कंट्रीज ने इसको अपने डोमेस्टिक डिस्कोर्स में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 पास किया, तब जाके इंडिया में भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। ओके, नाउ कमिंग टू मीडिएशन, a neutral third party called mediator facilitates a communication between the two parties in dispute and helps them to reach a mutually acceptable resolution of the conflict. देखिए, अवार्ड में तो फिर भी ऐसा होता है कि पार्टीज को मानना पड़ेगा जो भी आर्बिट्रेटर कहेंगे। थोड़ा सा आप दबिए, थोड़ा सा ये वाली पार्टी दबे, दोनों को दबा के अवार्ड दिया जा सकता है। मीडिएशन में क्या है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट करवा रहा है मीडिएटर, यहां कोई अवार्ड नहीं सुना रहा। वो मीडिएटर क्या कर रहा है? दोनों पार्टीज में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रहा है और उसके बाद एक रेजोल्यूशन निकाल रहा है कॉन्फ्लिक्ट का। Unlike the judge, the mediator does not impose a decision but helps the parties in conflict to communicate and craft their own agreement. That's very important. Then comes conciliation. The conciliator, an impartial third party, meets with parties in dispute separately to settle their conflict and reach a mutually satisfactory settlement by facilitating talks between them. ठीक है, यहां पर भी फैसिलिटेशन हो रहा है। ओके, मीडिएशन की तरह यहां पर भी फैसिलिटेशन। इट इज अ लेस फॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन वेयर पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस और सजेशंस ऑफ द कंसिलिएटर। मीडिएशन में तो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेशन हो रहा है, कंसिलिएशन में तो फिर भी एक फैसला सुना सकता है कंसिलिएटर, और यहां पर एक आजादी होती है कि वो उस फैसले को पार्टीज रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर दें। ओके, देन कम्स नेगोशिएशन. Negotiation is a direct communication process between the parties in conflict wherein they attempt to reach a mutually satisfactory resolution without the involvement of a third party. Negotiation can take place informally or with the assistance of legal representatives. In this type of ADR, all parties are in a win-win situation because they are in charge of the process and its outcome as everything is done keeping the parties' best interest in mind. Then comes Lok Adalat. देखिए, लोक अदालत अब लगती हैं मंथली सैटरडेज में, और इनका काम ये होता है कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ओके, यहां पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग लोक अदालत आती है। ओके, आप देखिए, इट इज अ यूनिक, सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट स्टीमिंग फॉर्म ऑफ एडीआर इन इंडिया। पीपल्स कोर्ट, जाइए अपना डिस्प्यूट बोलिए, पार्टीज जाके डायरेक्टली जज के सामने बोले जब लोक अदालत में बैठे हुए, अब मामले को वहीं का वहीं खत्म कर दिया जाए। अब पेटी ऑफेंसेस हैं, उनकी वजह से बाकी ऑफेंसेस जो बड़े हैं, जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं, उनमें भी डिले होता है। इस वजह से जरूरी है कि पेटी ऑफेंसेस को लोक अदालत में निपटा दिया जाए। ओके, देन इसकी वजह से देखिए, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एट द स्टेट लेवल टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, किसने प्रमोट किया एडीआर? कैसे प्रमोट है? दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, it deals with the settlement of disputes outside the court. सेक्शन 89, अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज जो डिस्प्यूट करती हुई कोर्ट आई हैं और
दोनों पार्टीज के बीच में स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, तो वो दोनों पार्टीज की मर्जी से, उनकी कंसेंट के साथ उनका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकता है कोर्ट. Section 89, 1 of the CPC states that where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations, and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through लोक अदालत और मीडिएशन. कोर्ट को जैसा भी सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, वो आर्बिट्रेशन में भेज सकता है, मीडिएशन में भेज सकता है, कंसिलिएशन में भेज सकता है, लोक अदालत में भेज सकता है कि इसको निपटाओ, खत्म करो मामले को. स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज है तो क्यों लड़ रहे हो? ठीक है. The Legal Services Authorities Act 1987 and the Arbitration and Conciliation Act 1996 deals with ADR. दोनों जो हैं वो ADR से डील करते हैं. Advantages क्या है? The concept of ADR offers a quicker resolution to conflicts, allowing parties to avoid lengthy court processes and delays. It's quicker, very quick. It is cost effective. पैसा बहुत कम लगता है. आपको हर डेट पर जाना पड़ेगा और सारी जिंदगी अगर सिविल डिस्प्यूट लड़ रहे हैं, हर डेट पे पैसा देना पड़ेगा और पता नहीं कितना पैसा देना पड़ेगा. कॉस्ट इफेक्टिव है ये. वहां पर आपको ऐसा नहीं है 1-2 बार 3 बार 4 बार, हो सकता है मैक्सिमम 7-8 हियरिंग में पूरा केस निपट जाए. Financial resources are required as compared to litigation. Cost effective. Then it helps in maintaining confidentiality as a dispute resolution usually takes place in a private setting. यहाँ कोई पब्लिक हियरिंग नहीं होती. कोर्ट्स में पब्लिक हियरिंग होती है, सब देखते हैं, आपका केस सुनते हैं, सब खड़े रहते हैं. हाई कोर्ट्स में भी पब्लिक हियरिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक हियरिंग होती है, सब लोग होते हैं, बाकी लॉयर्स भी होते हैं, पार्टीज भी होती हैं, देखती हैं सब. लेकिन यहाँ पर क्या आर्बिट्रेटर है और दोनों पार्टीज हैं, प्राइवेट सेटिंग है. ओके. पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द कोर्ट सिस्टम्स टेक्निकलिटीज. कोई वो लेंदी टेक्निकल प्रोसीजर्स नहीं है. स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, स्ट्रेट जैकेटेड प्रोसीजर है. जाओ, बात करो, कॉम्प्रोमाइज करो, सेटल करो, कम बैक होम. ठीक है. द प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल and customizable as per the needs and interests of the parties, enabling creative solutions that may not be possible in the case of traditional methods of dispute resolution such as litigation. पार्टीज कस्टमाइज कर सकती हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती हैं उसको. कस्टमाइज तो आप समझते होंगे, टेक्निकल वर्ड है, बहुत यूज होता है ना, आईटी में. वहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से. नहीं, आप आर्बिट्रेटर भी चूज कर सकते हैं. पार्टीज, अगर आप पार्टी हैं, दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर भी चूज कर सकते हैं. ADR methods also help preserve relationships by fostering open communication and collaboration with no feeling of enmity between the parties. Conclusion is there are certain case laws which we might discuss in some other lecture separately. कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं अभी, तो उस लैंडमार्क जजमेंट को मैं अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ना कि इस लेक्चर के साथ, क्योंकि वो ही अपने आप में एक अलग सेपरेट टॉपिक है. ओके. Conclusion is ADR presents a compelling alternative to traditional litigation, offering a range of methods designed to promote efficient, cost-effective, and collaborative resolution of conflicts. Okay. Now backlog of cases खत्म होता है और ADR को promote करना चाहिए. तो इसलिए business में, business environment में तो arbitration इतना ज़्यादा बढ़ गया, because people, the business and the companies, they are not interested in moving to the court and waste their time and money. They want a quicker solution because they don't have time for fighting the disputes. So arbitration comes like a panacea for all these glitches, technical glitches in the judicial system. Okay, so that's all about ADR. Thank you.